हेलो एवरीवन, वी आर विद हिमांशु गुप्ता। हिमांशु गुप्ता ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019 में 27th रैंक एक्वायर किया। I am so happy that Himanshu Gupta is one of our student, and I am lucky, our institute is lucky to have students like him who are committed to the goal and very, very hardworking, very, very clear in thought process, and always open to learn. So, Himanshu, I want to congratulate you on your success. Thank you. And on the behalf of other students, see, I want to ask you few questions, few basic questions, right? Because when we look at the process right now, so we look from the perspective of a mentor. So we are not in active preparation, but you are in active preparation right now. So it is better to listen from your side. First, I would like you to briefly introduce yourself to students and tell them about your UPSC journey. Thank you, sir, for the introduction. और I'll try to talk in both Hindi and English. और I think you said well that active preparation. तो just before the day of the result, I was in the phase of active preparation. I was preparing for 2020 exam. So it was a really unexpected result for me. Regarding my UPSC journey, it's been a very long journey. I started preparing in my 4th year in my engineering. So it was in 2015 when I thought that I would give the civil service exam. और उसके बाद 2016 में I gave one attempt, and in that 2016 I had just graduated from college, so that was kind of a very blank attempt, I would say, because I was not so aware of what exactly the paper demands. उसके बाद 2017 में मैंने नहीं दिया because I was in my job. Then I left my job in 2018 March, and thereafter I actually started full-time preparation for this exam. 2018 June exam was my first serious attempt at this paper, and I was not able to qualify the prelims there. Then I gave the 2019 exam, and prelims also got qualified. Then I don't know how, but the mains also got qualified, and in the same exam the result is also there. That is great. So one important question comes up for the students, because this happens with many of the students when they are graduating or just graduated. So they give their first attempt in hurry. There are limited attempts with civil services, and with every failure, if you have given the exam seriously or non-seriously, after some time the burden of failure piles up on your head, right? What do you have to say about it? What is your experience with that? Students को attempt लेना चाहिए इस तरह immediately immature attempt या नहीं लेना चाहिए? Sir, I think अगर immature attempt मैं नहीं कहूँगा, but हाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि you have to see your own situations. अगर if somebody is just out of college and he or she thinks that he has many attempts left, and फिर भी उसको लगता है कि I have studied a bit enough and I want to know about the exam and all. So I don't think it's a great harm in giving the exam at the first place. मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो लोग पेपर फॉर्म तो भर देते हैं, बट वो उनके दे ड्रेड गिविंग द अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, बिकॉज उनको लगता है मैं एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, परफेक्ट प्लान बनाऊंगा, उसे इम्प्लीमेंट करूंगा, फिर प्रीलिम्स दूंगा, और वहां तक वो रुक जाते हैं वो, बिकॉज एक्चुअली एक बार प्रीलिम्स देने के बाद ये होता है कि यू टेंड टू रियलाइज कि सब कुछ आप नहीं जान सकते हो. इट इज देयर, योर प्रिपरेशन विल ऑलवेज रिमेन पैची, योर प्रिपरेशन विल ऑलवेज बी somewhat imperfect, and ऐसे ही प्रिपरेशन होती है. सो इमेच्योर अटेम्प्ट देना या नहीं देना, आई थिंक अगर आपके पास अटेम्प्ट हैं, अगर आपकी एज आपको देती है, अलाउ करती है, आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई. ओके, दैट इज ग्रेट. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि परफेक्ट स्ट्रेटेजी इस एग्जाम के लिए नहीं हो सकती है, और प्रिपरेशन हमेशा एक पैची फॉर्म में रहती है. बस हमें अपने बेस्ट एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में देते रहना चाहिए. और एग्जाम अपने आप में एक बहुत बड़ा टीचर है. जब आप एग्जाम देते हैं तो काफी चीजें हैं जो आप सिर्फ एग्जाम से ही समझ सकते हैं,
हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज एक इम्पोर्टेंट, सब लोग स्टूडेंट्स की एक स्ट्रेटेजी होती है। कुछ एक या दो की पॉइंट्स होते हैं जो उनको लगता है कि इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने इनको हेल्प किया। इट मे बी द थॉट प्रोसेस, इट मे बी द स्किल्स, मे बी राइटिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, इट मे बी सम अदर थिंग। व्हाट कुड बी दैट थिंग जिसको आप अपनी तरफ से क्रेडिट देना चाहोगे? मेरे हिसाब से सर, एक होता है, I think the attitude is very much required. So it is not only about analytical skill or interpretation or something, but I think एक attitude of seeing the things in not in bilateral way. हम सब चीजों को देखते हैं या तो ये बहुत ही अच्छी होगी और या तो ये बहुत ही खराब होगी। खास तौर पे इंजीनियरिंग माइंडसेट हमारा ऐसे ही होता है, आइदर इट इज वन और आइदर इट इज जीरो, बट इट इज अ होल स्पेक्ट्रम। और हम हमेशा किसी स्पेक्ट्रम के एक साइड में होते हैं। और दिक्कत ये होती है कि people start judging you either in one or zero. People say either you will be completely successful, तुम तो IAS बन जाओगे रैंक 1, या तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है फ्यूचर में, तुम तो बिल्कुल बर्बाद हो। एक्चुअली लाइफ ऐसी नहीं होती है, लाइफ इज ऑलवेज विद इन दी स्पेक्ट्रम और हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है। तो व्हेन यू एक्नॉलेज दैट थिंग कि हम यहीं कहीं बीच में है, वी जस्ट कैन स्ट्राइव टू अचीव दैट वन और दैट perfect thing, but yes, we may not be able to achieve that thing, but we can always try to do that thing. बस वही आई थिंक वही जर्नी है और उसी को फॉलो करना चाहिए। राइट, दैट एटीट्यूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, डेवलपिंग दैट एटीट्यूड। राइट, सो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ही हैज अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस। और जब भी ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ अवर जीपीएम प्रोग्राम, जब भी इंटरेक्शन होता था हिमांशु के साथ, तो इट वाज ऑलवेज एन एनरिचिंग इंटरेक्शन, क्योंकि हम अपने एंड पे स्टूडेंट के साथ बहुत कुछ सीखते हैं, एंड इट इज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर बोथ स्टूडेंट एंड द मेंटर्स। सो हिमांशु, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है जिज्ञासा आईएएस के साथ, वो कैसा रहा है? सर, जिज्ञासा आईएएस मैं बोलना चाहूंगा पहले तो आई थॉट अबाउट इट कि हाँ, आई हैड मच स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माय मेंस पेपर्स। और उसके बाद देन कहते हैं किसी ने घाट घाट का पानी पिया है, मैंने वो तो नहीं करा है, बट मैं जगह जगह गया जरूर हूँ। एंड उसके बाद देन आई टुक आई थिंक अ गुड डिसीजन एंड रैशनल डिसीजन टू जॉइन दिस जीपीएम प्रोग्राम ऑफ जिज्ञासा आईएएस। और इसने हेल्प करी है, नो डाउट, फॉर एवरी पेपर विच इज चेक्ड। आई थिंक जो मुझे रिक्वायरमेंट थी कि हर पेपर को उसकी फेस वैल्यू पे जज करा जाए, इवेल्युएट करा जाए, रादर देन अ मॉडल आंसर विच इज इन फ्रंट ऑफ यू और उसके बेसिस पे आप कंटेंट मिसिंग डाल देंगे या फिर स्ट्रक्चर इज नॉट वेल या कुछ ऐसी चीज डाल देंगे विच इज वेरी वेग। आपके यहाँ से जो जिज्ञासा आईएएस के यहाँ से जो भी मुझे फीडबैक मिला है, not only in terms of what is written on the answer sheet, but I think major part is also because of the personal one-to-one interactions with all the answer sheets. That has been very great. तो हर आंसर को उसके मेरिट पे जज करना, उसके मेरिट पे इवेल्युएट करना, that has been I think your forte and that is really great for me. Okay. थैंक यू फॉर दैट। एक्चुअली हम लोगों का बेसिक सोचने का तरीका ये है कि हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट एकदम अलग होती है, और हर स्टूडेंट का सोचने का तरीका अलग होता है, तो सारे आंसर एक जैसे हो ही नहीं सकते। देयर कैन बी नो मॉडल आंसर, देयर कैन बी पैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो इस आंसर के लिए दी जा सकती है कि ये इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो यूपीएससी शायद आंसर के थ्रू एक कैंडिडेट को जज करती है वेदर द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द पोस्ट और नॉट, रादर देन चेकिंग ऑब्जेक्टिवली दैट आंसर। तो वो पूरा एक आंसर की आइडियोलॉजी चेक की जाती है उसमें। सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू विद द स्टूडेंट्स। हिमांशु, अभी जो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं 2020 का, ये टाइम ऑफ टर्मोइल है बनी हुई, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे आप अपनी तरफ से? डेफिनेटली सर, एक एग्जाइटी तो है ही, बिकॉज कोविड पैंडेमिक है और ओवरऑल भी बहुत ये एग्जाम ही बहुत अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेनिटी होती है इस एग्जाम में। तो हर स्टेजेस पे जो भी स्टूडेंट है, इफ दे आर गिविंग द नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स लेट्स से, तो प्रीलिम्स के लिए आई थिंक क्योंकि डेट भी पोस्टपोन हुई है, आई गेस प्रिपरेशन काफी इंटेंसिव होनी चाहिए। मैं आउट ऑफ ऑल द 3 स्टेजेस पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछे तो द मोस्ट इंटेंसिव स्टेज ऑफ प्रिपरेशन इज फॉर द प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स में यू नीड विड्थ एज वेल एज द डेप्थ। दोनों आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और एज वेल एज दी वाइड कवरेज भी होना चाहिए, हर चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो, अलग अलग चीजों का। मोर देन दैट ऑल्सो आई थिंक
इंटरनेट और डिजिटल रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छा यूसेज करना चाहिए। आई थिंक बहुत लोग होते हैं जो who try to restrict themselves from the internet, but my personal opinion is that you should use internet as much as possible। एक अंदर क्यूरियोसिटी होती है तो अपने आप ही, let's say if I'm going somewhere, I see something, I pick up my phone and just Google that thing up। कुछ विकिपीडिया का पहला पैराग्राफ ही पढ़ लो, उसमें से ही काफी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। दैट इज हेल्पफुल। तो अपने एक ओवरऑल ही एक चेंज ऐसा लाने की जरूरत है ताकि आप क्यूरियोसिटी भी रहे और आप वो चीजें जाने भी आसपास क्या हो रहा है। कोविड पैंडेमिक चल रहा है, कोविड से रिलेटेड इतनी सारी चीजें, इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, इतने अलग अलग सेक्टर्स पे इम्पैक्ट के बारे में बातें हो रही हैं, उनके बारे में हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी से देखना जब हम शुरू करेंगे, आई थिंक वो अपने आप ही एक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप होती जाएगी और वाइड कवरेज भी होता जाएगा विद द यूज ऑफ इंटरनेट। तो इन सब चीजों का अगर आप जुडिशियस और वाइज यूज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई एंड अगेन इन द एंड आई वुड से दैट परफेक्ट स्ट्रैटेजी कभी नहीं बन पाएगी किसी की। नोबडी इज परफेक्ट, इवन आई एम नॉट Right. परफेक्ट। मेरे साथ ऐसे डेज हुए हैं जहाँ पे मैंने 0 आवर्स ऑफ स्टडी करा है, ऐसे डेज भी हुए हैं जहाँ मैंने मोबाइल गेम्स खेले हैं या मैं सोशल मीडिया पे रहा हूँ। बट ऐसे आवर्स भी रहे हैं एंड एटलीस्ट इन द लास्ट फेजेस ऑफ माय प्रिपरेशन जहाँ पर मुझे नहीं पता, आई हैव नॉट केप्ट काउंट ऑफ व्हाट आवर्स आई हैव स्टडीड, मे बी 14 आवर्स और 15 आवर्स। तो जब आप एंग्रॉस हो जाते हैं किसी चीज में, थोड़ा आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ते हैं काफी ज्यादा, तो अपने आप ही द टाइम गोज ऑन। सो try to at least everyone should try to pursue excellence। we cannot be excellent, but we can always try to be excellent। so यही I think मेरा मैसेज होगा। Okay, okay, that is wonderful. That is a wonderful input actually you have given, और ये बहुत यूजफुल है। आई होप स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि एक एक वर्ड, जिसने वो जर्नी चली है, एक एक वर्ड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस पूरी प्रिपरेशन में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें जो गाइडेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने, जिसने वो जर्नी चल के देख ली, उनको पता है कि किस तरह से ट्राई कर सकते हैं आप। हर किसी की जर्नी होगी एकदम अलग, कभी भी सिमिलर जर्नीज नहीं होंगी, लेकिन जो माइलस्टोन है वो लगभग सेम होते हैं। तो आपको वो पता चल जाता है कि आगे माइलस्टोन कैसे और उसको किस तरह से एक अप्रोच बनाई जा सकती है। तो थैंक यू हिमांशु, बहुत अच्छे थैंक से यू सर, थैंक यू। स्टूडेंट्स के लिए इनपुट दिया है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद ऑल योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक्स।